senior lawyer Mahesh Jethmalani has now responded to Kangana Ranaut's explosive interview on Republic TV. For more on this, let's go across to my colleague Niranjan. Niranjan, please share more details. Senior advocate Mahesh Jethmalani, who's very outspoken on these issues. For the first time, he's spoken out on the interview that Kangana Ranaut gave over the weekend, in which he goes on to talk about the Bollywood drug cartel, the entire Bollywood drug mafia that exists, its support system, how drugs are supplied, how actors, actresses, wives of actors, and she spoke about everything. It was a no-holds-barred interview. She spoke out also about how she was at one point forced into it, and how people took advantage of her and exploited her. She spoke about it in great detail. And I think the biggest takeaway of that interview was how she mentioned that 99% of top Bollywood stars consume drugs. And, Mahesh Jethmalani has said, and I quote, that a Bollywood actress makes a serious charge claiming personal knowledge on a TV channel with a large viewership that 99% of Bollywood consumes narcotic drugs. Not one person from that industry contradicts her. What inference is the public to draw from this deafening silence? And he's got a point, because nobody has come out and rebutted or tried to defend Bollywood in this case, because nobody really can in this case, given the entire development around the Rhea Chakrabarti case in the murder of Sushant Singh Rajput. The entire drug cartel has come under the scanner. The Narcotics Control Bureau, as we speak, in the course of the last 72 hours, has rounded up at least 45 drug peddlers from Bollywood with links to Bollywood. Yeah, they targeted young stars. And this becomes all the more explosive after Kangana spoke to Arnab over the weekend. It's a Republic TV interview, the Republic TV news break, and it's getting much bigger. The debate is getting much bigger. Mahesh Jethmalani has asked why nobody from Bollywood has contradicted Kangana, and what is the public to think of the silence inside Bollywood, and what inference, that's what he asked. What inference is the public to draw from this deafening silence? The story broken on Republic TV getting bigger. Will anybody from Bollywood have the courage to come out and contradict Kangana? Kangana is an outsider. She at one point was privy to everything that went on, and she described it in great detail. Here's one excerpt of that interview. मुझे बताइए टॉप लेवल पे कितने परसेंट, अगर आपको मैं पूछूं टॉप लेवल पे जो आपने देखा है नाम लिए बिना, कितने परसेंट बड़े स्टार्स जो हैं या टॉप स्टार्स हैं या टॉप नेम्स हैं बॉलीवुड के, कितने परसेंट ड्रग यूजर्स हैं? देखिए, at some point 99% of them, but if they have faced some health conditions and because of age and because of this thing, they have been admitted and they have severe repercussions, तो maybe अभी उन्होंने क्विट किया हुआ है, तो उनको भी मैं काउंट करूं जिन्होंने आफ्टर दिस थिंग. तो आई थिंक अराउंड 99% अगर उनको भी काउंट करना हो, तो जिन्होंने आफ्टर यूजिंग इट थ्रू आउट देयर यूथ, और अब जब उनको तो रेपरकशंस हो रहे हैं तब छोड़ दिया है, क्योंकि उनको रिएक्शंस हो रहे हैं उस चीज के, बिकॉज आप एज एक टाइम के बाद आप नहीं कर सकते, और उनको अल्टीमेटम, बिकॉज दे आल्सो हैव बेस्ट मेडिकल हेल्प इन द वर्ल्ड, तो करके वो उनको भी मैं काउंट कर रही हूँ. तो अराउंड आई थिंक एवरीबडी विदाउट अ फेल at some point, yes, doing it. और अगर वैसी पार्टी हो तो डेफिनेटली इंडल्जिंग, डिपेंड्स. अगर आप पावरफुल हो तो यू आर होस्टिंग द पार्टीज, अगर आप पावरलेस हो यू आर नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टीज, और अगर कहीं आप के साथ में किसी तरह की उनको कुछ वो है, तो आपको आप ही अपने ही सर्कल में बना के अपने जैसे. अगर आप ड्रग यूजर नहीं है तो आप तो ब्रेक इन नहीं कर सकती है इंडस्ट्री में. पॉसिबल ही मतलब यही आपका कोई पॉसिबल ही नहीं है आपको, क्योंकि एक क्लब बन चुकी है, ड्रग यूजर्स की क्लब है बॉलीवुड. ड्रग यूजर्स की क्लब है, एंटी नेशनल्स की क्लब है. अगर आप हिंदुइज्म का मजाक ना उड़ाए, अब साधुओं की लिंचिंग हुई, एक भी देश ने, एक बॉलीवुड से एक भी बंदे ने कुछ नहीं कहा, तो ये कौन उनको इंपावर कौन कर रहा है? इंपावर कौन कर रहा है? हमारा देश इनको इंपावर कर रहा है. साधुओं को पत्थर से कूट कूट के मार दिया गया मुंबई पुलिस के सामने.
किसी ने एक बात नहीं कही और पूरा बॉलीवुड क्यों? क्योंकि इनको डर है, किसी के कोई ड्रग के सीक्रेट्स जानता है, किसी को किसी से फिल्में मिलनी है, किसी को किसी के साथ में कोई और लालच है। ये पूरा ऐसे लालच से साथ में बुना हुआ जाल है। मुझे लग रहा है कि अभी जो ये केस, जैसे मैं 1.5 महीने से की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और मुझे 100% मैं कन्विंस्ड हूं कंगना कि ये सुशांत की हत्या हुई है, वो कुछ जानता था। अब वो क्या है, वो डिटेल्स राज खुलेंगी। मगर मुझे ये भी लग रहा है कि जो पीछे जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं, जहां से शुरुआत हुई थी इस मुहिम की, वो छिपे हुए हैं। दे आर हाइडिंग, दे आर अफ्रेड। वो चाहते हैं कि बात, हत्या वाली बात आगे निकले, किसी तरह से उनकी जो रोल है बॉलीवुड की गंदी सीक्रेट्स, ये बात छिप जाए। सो दे आर इन हाइडिंग, दे वांट दिस मैटर टू पास, दे वांट टू बी क्वाइट टिल द मैटर पासेस। आपको क्या लगता है? ताकि उन पर कोई उंगली ना उठाए। तो आपका बोलना, आज फिर आके बोलना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सर मैं तो यहाँ पे मनाली में हूँ, नहीं तो मुंबई में होती तो कब की इन लोगों ने मुझे लटका दिया होता पंखे से। जब इन्होंने इतनी घनिष्ठ कोशिशें की थी, जब मैंने इनके पहली बार राज खोले थे, इन्होंने इतनी कोशिश की कि ये मुझे जेल में डाले या मरवा डाले, तब तो ना मैं सुशांत के लिए आज खड़ी हो पा रही हूँ। अगर मैंने उस टाइम आवाज नहीं उठाई होती तो आज तो कोई शायद इतना कुछ बताने का मौका, मैं तो कितने सालों से बताती आ रही हूँ। और कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहती हूँ। क्यों ना निकालूं मैं अपनी दुश्मनी? क्यों ना निकालूं मैं अपनी दुश्मनी? बताओ मुझे, क्या इस देश में, जब मैंने आपको बता दिया है कि इट इज, ये मैंने मणिकर्णिका के रिलीज के बाद कहा था कि फॉर मी इट इज डू और डाई,